खोल रही होती हूँ, ठीक है। तो सभी को साई राम। लेट्स स्टार्ट द क्लास। वी विल स्टार्ट विथ द नेक्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट बिकॉज द टीचर इज गोइंग टू चेंज इन नेक्स्ट वीक, मंडे से संमित्रा मैम लेंगी आपकी क्लास, तो मैं क्वेश्चन आंसर्स पे नहीं जाऊंगी अभी। मैम क्या बोला मैंने? कोई मेरी सुनता नहीं है क्या यहाँ पे? ये जो चैप्टर है इसको हम शुरू कर लेते हैं, एंड क्वेश्चन आंसर्स जैसा मैम बोलती हैं, मैम के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से आप लोग कर लीजिएगा। मैं ये चैप्टर पढ़ा देती हूँ, चैप्टर नंबर 2, दैट इज फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, हाउ द कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर। सी यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम लोग एक ऐसे टाइम की बात कर रहे हैं जहां पर मुगल एम्पायर बहुत ही बुरी तरह खत्म हो चुका था। इट वॉज ऑलमोस्ट डिस्ट्रक्टेड, इट वॉज डिस्ट्रॉयड, बट नॉमिनल पावर अभी भी उन्हीं के पास थी। तो उनके जो गवर्नर्स हुआ करते थे, उन्होंने धीरे धीरे छोटे छोटे एरियाज में अपनी पावर को स्टैब्लिश कर लिया। तो ऐसे में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? एक ट्रेडिंग कंपनी थी इंग्लैंड में। ईस्ट इंडिया इसलिए क्योंकि इंडिया इंग्लैंड के ईस्ट में था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई। कैसे आई? उन्होंने कैसे ट्रेड शुरू किया, कैसे अपनी पावर को यहाँ पे स्टैब्लिश किया। पहले ट्रेड करने आए थे, फिर उन लोगों ने अपना एडमिनिस्ट्रेशन एस्टैब्लिश कर लिया। कैसे किया? दैट इज व्हाट वी विल डिस्कवर इन दिस चैप्टर। तो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे दैट हाउ डिड ईस्ट इंडिया कंपनी अराइव, और बाकी कैसे करते करते उन्होंने अपनी यहाँ पे पावर स्टैब्लिश करी। मैम एक मिनट, उसमें आवाज आ रही है क्या? नो मैम। रुक जा, रुक जा, रुक जा, आई विल रीलॉग इन। मुझे लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है। Major land routes passing near Constantinople were closed for trade when the Ottoman Turks captured it in 1453. The Europeans now needed an alternate route to continue their trade. So they sent various explorers to find new sea routes to Asia. It was Vasco da Gama, a Portuguese sailor, who first discovered a new sea route to India in 1498. Soon after the discovery, the Portuguese established their first trading center in Cochin in Kerala. They were followed by the Dutch, who arrived in the early 17th century and at first settled in the east coast of Tamil Nadu. The Dutch were closely followed by the English, who set up their first trading center in Surat in the west coast. By mid-17th century, the French traders too had arrived. They established their major settlement in Puducherry. Among all the European traders, the most prominent were the English. The
main aim of the European trading companies was to buy goods at cheap rates and sell them in the European market at highly profitable rates. Such trading companies were called mercantile trading companies. Let us learn the role of one such mercantile company, the East India Company of England. In 1600, Queen Elizabeth I allowed the East India Company to operate in the East by way of a trade charter. It now became the only mercantile company from England to trade with India. Soon, it established the first English factory in 1651 on the banks of the river Hooghly. The factory consisted of a storeroom for export goods and several operating offices for company officials. Though the East India Company managed to eliminate internal competition, it had no control over the other European mercantile companies trading with India. As they were all keen on buying the same commodities such as fine cotton, silk and spices, severe competition emerged among the mercantile companies. This in turn increased the cost of these goods in India. Soon, the overall profit for the Europeans decreased. To facilitate profits, mercantile companies resorted to unhealthy practices such as sinking rival ships loaded with goods and blocking their routes. In course of time, it became necessary to carry weapons for protection as well as provide tight security for existing trading centers. However, some local rulers objected to the use of arms and fortification of foreign trading centers on their land. Hence, East India Company secured the support of Nawab of Bengal, Murshid Qali Khan. It soon acquired zamindari rights over 3 villages including Kalikata, which is present-day Kolkata, by 1698. With the passage of time, it got the right to trade duty-free through a royal order called Farman, issued by Emperor Aurangzeb. Though this trade concession was not available to Europeans undertaking private trade, they still refused to pay duty. Eventually, the Nawab of Bengal, Murshid Qali Khan, protested against such concessional trade policies as it considerably reduced the revenue of Bengal. This caused a political conflict between the East India Company and the Nawab of Bengal. Think about. हाँ जी, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है स्टोरी में कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है? धीरे धीरे करके पढ़ेंगे. जहां पे तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, मुझसे पूछते जाओ. Anyone, anything? सब समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? मैम, रूट्स जो होते हैं, सी रूट्स, वो कैसे ढूंढते हैं? बेटा, उसके लिए ना आप एक कंपास लेते हो और जैसे जैसे लहरें लेकर जाती है ना, आप उसके हिसाब से जाते हो. आप कभी अगर सी में गए होंगे तो आप देखना, आप उसके अगेंस्ट ज्यादा सेल नहीं कर सकते, है ना. पानी का जो फ्लो होता है, बहाव होता है, वो बहुत तेज होता है. आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जा सकते हो. तो किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाके किस तरह से घूम के आप एक जगह पे पहुंचेंगे, तो वो एक सी रूट डिसाइड हो जाता है. क्योंकि कुछ टाइम होता है साल का जब पानी का जो फ्लो होता है वो एक डायरेक्शन में होता है, तब आप उस रास्ते से इस जगह ही पहुंच पाओगे. समझ रहे हो मेरी बात? यस मैम. तो मैम, फिर इसको ढूंढना इतना मुश्किल क्यों होता है?
क्योंकि बेटा अब तुम ये सोचो कि तुम्हें देखो सी रूट क्या है, लैंड रूट की तरह नहीं है कि ये रहा पॉइंट है, वो रहा पॉइंट भी और दौड़ के पहुंच गए। आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाने के लिए बहुत घूम के आना पड़ेगा, क्योंकि पानी का फ्लो जो है आपको बिल्कुल सीधा लाइन में थोड़ी लेके जाएगा, घुमा घुमा के आप थोड़ा सा इधर हिचको ले खाओगे, उधर धक्का खाओगे, फिर पहुंचोगे। एनीथिंग एल्स? नो मैम। हाँ, और किसी का कोई सवाल? मैम मर्सेंटाइल क्या है? मर्चेंटाइल मतलब बेटा कुछ भी सामान जो होता है ना, मर्चेंट किसे कहते हैं, जो सामान को ट्रेड करता है, तो मर्चेंटाइल या मर्केंटाइल हम उस चीज को कहते हैं जो चीज ट्रेड हो रही है। ओके मैम। एनीथिंग एल्स? बेटा अगर आपको समझ नहीं आ रहा है ना, आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो मान के चलूंगी कि सब समझ में आ रहा है और मैं आगे पढ़ाती जाऊंगी। और पूरे साल जो है एक ही स्टोरी है, ये सारे चैप्टर्स एक बड़ी सी मूवी जैसे हैं। मैम वो मैम जो मैम मर्केंटाइज थे मैम, वो रोडवेज का लैंडवेज का यूज क्यों नहीं करते थे? बेटा उन्होंने शुरू में बताया था ना कि जो लैंड रूट था, उसका जो रास्ता था, उसके बीच में एक एम्पायर खड़ा हो गया, ऑटोमन एम्पायर। उसने जो है ट्रेड रोक दिया कि अब यहाँ से नहीं लेके जाओगे। उनकी और वेस्टर्न एम्पायर्स में लड़ाइयां चल रही थी, तो उन्होंने रास्ता रोक दिया कि यहाँ से कोई सामान वहां नहीं जाएगा। यस मैम। ठीक तो है। मैम वो लोग वहीं से मैम ऐसा कर लेते कि अगर वहां से रूट बदल के थोड़ा आगे से ले जाते, तो वो क्यों नहीं करा उन्होंने? रुक जा बेटा, मैं तेरे को बताती हूँ कि ऐसा क्यों नहीं कर पाए वो लोग। मैम फारमैन मतलब? फारमैन नहीं, फरमान। फरमान मतलब एक रॉयल ऑर्डर। फरमान जारी किया जाता है, सुना है कभी मूवी वगैरह में? यस यस मैम। मैम, एक बार मूवी में सुना था। हाँ, तो फरमान का मतलब ये होता है कि रॉयल ऑर्डर, किंग ने बोल दिया अब तो यही होगा, आज से सब लोग लौकी की सब्जी खाएंगे, मैं ये फरमान जारी करती हूँ। एक मिनट बेटा, मुझे जरा टाइम देना, मैं तुम लोगों के लिए एक मैप ढूंढ रही हूँ। वर्ल्ड मैप ही लगेगा इसमें, तो रुको। ये शादी क्या हुआ?
मैम कॉन्फेडरेसी क्या होता है? कॉन्फेडरेसी मतलब जहां पर बहुत सारे स्टेट मिलकर एक अपना, कहते हैं ना, कॉन्फेडरेशन जिसे कहते हैं, बहुत सारे स्टेट्स मिलकर अपनी एक पॉलिटिकल यूनिट बनाते हैं। ओके मैम। अब ये देखो, ये मैप दिखाई दे रहा है? यस मैम दिख रहा है। ठीक है, चलो अब यहाँ ध्यान से देखना। ये है इंग्लैंड, ठीक है? समझा कि और जूम करूं? यस मैम। रुक जाओ और थोड़ा सा जूम करती हूँ। तो ये है इंग्लैंड, ओके, और ये है इंडिया, ठीक है? अब आप ये कह रहे हो कि जब इन्हें यहां से यहां ट्रेड करना था तो ये लैंड रूट से क्यों नहीं गए? तो ये था यहाँ पे लैंड रूट, ठीक है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, टर्की, और ये रहा वो जंक्शन जहां से ये सामान यूरोप में जाता था, ठीक है? मैम टर्की होता है या तुर्की? बेटा हिंदी में तुर्की बोलते हैं, इंग्लिश में टर्की बोलते हैं, ठीक है? अब ये यहां से सामान जाया करता था, ये लगभग एक रफली उनका रूट था। अब ये जो एरिया है, ये एरिया आ गया ऑटोमन एम्पायर के अंडर। वो इन लोगों से लड़ते थे, तो इन्होंने बोला अब यहाँ से कोई सामान इस तरफ नहीं जाएगा, और जाएगा तो बहुत महंगे में जाएगा। अब उनको सामान तो चाहिए, तो उन्होंने क्या करा, एक सेकेंड, यहाँ पे इसमें दिख नहीं रहा है, यहाँ पे नीचे तक अफ्रीका है, और यहाँ से घूम के इधर पहुंचे इंडिया के पोर्ट में। यहाँ पर आया था वास्को डेगामा सबसे पहले, कैलीकट में। अब तुम बोलोगे कि यहाँ से भी तो रास्ता है, यहाँ से क्यों नहीं गए? क्यों? बोलो, पूछो, कौन पूछेगा? मैम यहाँ से भी तो रास्ता है, यहाँ क्यों नहीं गए? बेटा ये सोवियत यूनियन है, यहाँ पर बहुत ठंडा है, यहाँ पे बर्फ ही बर्फ है, यहाँ से कोई रूट नहीं है जाने का। तुम ये देखो, यहाँ से अगर घूम के जैसे तैसे ये पहाड़ियां, यहाँ पे यूरल माउंटेन्स है, उसको क्रॉस नहीं कर सकते। यहाँ पर हिंदू कुश माउंटेन्स है, उसे क्रॉस नहीं कर सकते। ज्योग्राफी में केवल पॉलिटिकल बाउंड्री थोड़ी होती है। मैम हाँ मैम वो एरोप्लेन से तो नहीं गए? बेटा, मैं कौन से साल की बात कर रही हूँ यहाँ पे? 1600 में एरोप्लेन था क्या? बता। अगर ऐसी बात थी तो फिर हमने ताजमहल हेलीकॉप्टर से क्यों नहीं बनाया? हाँ, सोचो सोचो, बताओ मुझे। तब है अभी भी जो ट्रेड होता है ना, वो मोस्टली सी रूट से ही होता है, क्योंकि बल्कि सामान, बहुत ज्यादा सामान बहुत सस्ते में सी रूट से ही पहुंचा सकते हो। एरोप्लेन से पहुंचाना बहुत महंगा होता है। राघव अपना माइक बंद रखो बेटा। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। यस मैम। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। नॉन प्रॉफिटेबल मतलब? प्रॉफिटेबल मतलब जिससे आप प्रॉफिट कमा सके, फायदा हो सके आपका। बिजनेस मैम करते इनको हाँ बोलो बोलो। मैम इनको गुड्स ट्रैवल करने में कितना टाइम लगता है? बेटा उस टाइम पर ना 2-3 महीने लगते थे सी रूट में जाने से, ऐसा मैंने सुना है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, रुक जा मैं चेक कर ही लूं।
time for a ship to travel from India to England in 1600s. 6 महीने लगते थे और कभी कभार 3-4 महीने एक्स्ट्रा भी लग जाते थे। मैम तो इतने इतने दिनों में तो जो गुड्स ट्रैवल कर रहे हैं लाइक स्पाइसेस वगैरह, तो वो तो सड़ जाते होंगे ना? नहीं बेटा, उसे प्रॉपरली प्रिजर्व करके भेजते थे ना, यही तो कला है, प्रॉपरली प्रिजर्व करके भेजते थे। मैम उनके मैम जहाज में स्पीड कितनी थी? बेटा अब तो स्पीड लगा ले, जब उसको 4 महीने लग रहे हैं। और डिस्टेंस ऑफ सी फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड थ्रू कितना डिस्टेंस है? इसमें डिस्टेंस तो लिखा नहीं है, रुक जा, ढूंढती हूँ मैं, ऐसे कैसे। Distance of sea route. ये बता रहा है 7059 नॉटिकल माइल्स, और एक नॉटिकल माइल लगभग मेरे ख्याल से 12 किलोमीटर होता है। 759 नॉटिकल माइल्स, ये हो गए लगभग 13,000 किलोमीटर समथिंग बता रहा है, बट ये अप्रोक्सीमेशन है, मैंने बहुत अच्छे से तो नहीं देखा है। यस, तो आगे बढ़े। यस मैम। यस मैम। चलो यस मैम। India had a rich history of trade with Europeans since early years. By the 17th century, many European companies were trading with India and each tried to establish its supremacy in trade. Of these, the English East India Company proved to be the most successful and was able to lay deep roots in Bengal. England formed the English East India Company as a trading company in 1600. In the year of its formation, the company obtained a charter from Queen Elizabeth I. This charter granted them exclusive rights to trade with the East. This led to elimination of competition from other trading groups in England. As a result of this trade monopoly, English East India Company became extremely powerful. But conquering the Indian market was not an easy task. Other European companies had already entered into trade relations with India.
The Portuguese, the Dutch and the French had trade connections with India before the arrival of the East India Company. All of them wanted to buy spices such as pepper, cloves, cardamom and cinnamon. Indian silk and cotton too were in great demand in European market. This gave rise to fierce competition among the European powers, and European companies started setting up trading posts in India. Hello, my name is William Brown. I came to India in the 17th century as an official of the East India Company. Here is a brief summary that will tell you how we began and expanded trade in Bengal. Our first factory in Bengal was established in 1651. It was built on the banks of River Hooghly. The company's traders, known as factors, operated from this factory. Goods for exports were stored in the factory warehouse. The factory had offices where we, the company officials, worked. Once the factory was established, we needed population around it. Traders and merchants were persuaded to settle around the factory. In 1696, the company began to build a fort around this settlement. The company used unscrupulous means to expand trade in Bengal. We obtained zamindari rights over 3 villages by giving bribes to Mughal officials. One of these 3 villages was Kalikata, later known as Calcutta. The company put pressure on the then Mughal Emperor Aurangzeb and obtained a farman or a royal edict. The farman gave us the right to trade duty-free. Even as we pressed for further concessions, we manipulated existing privileges to our benefit. Using the farman, many among us carried out private trade, though the right was issued only to the company. This led to huge loss of revenue for the Nawab. The Nawab of Bengal protested against such manipulations. The culmination of such conflicts was the famous Battle of Plassey. On the banks of which river? Yes, any questions? Any questions, anyone? इसने वही स्टोरी जो है फर्स्ट पर्सन में बताई है कि धीरे धीरे इन लोगों ने कैसे अपने ट्रेडिंग राइट्स सिक्योर करे एंड स्लोली हाउ दे स्टार्टेड एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टेड ऑफ ट्रेड. Anybody has any questions? मैम मैनिपुलेट का मतलब क्या होता है? Manipulate का मतलब होता है that you are trying to make somebody do something that you want to do but they don't want to do. समझे कि और अच्छे Yes, समझाऊं? और अच्छे समझाऊं? मतलब ये वही बात हुई, टीचर पढ़ाना चाहते हैं लेकिन आप क्या करते हो, टीचर को बातों में लगा देते हो, तो वो आप क्या, उससे क्या होता है, आप टीचर का टाइम वेस्ट होता है, आपको पढ़ना नहीं पड़ता है, तो आपने क्या कर दिया, टीचर को मैनिपुलेट कर दिया. ठीक है, चलो. yes. और किसी का कोई सवाल? मैम तो ये जब इन लोगों ने औरंगजेब को फोर्स किया तो इसी से उन लोगों के पास इन लोगों ने हम पर रूल करना शुरू किया. बेटा औरंगजेब को फोर्स नहीं करा था, औरंगजेब वाज पावरफुल. उससे इन्होंने जाके एक तरीके से ऐसे बोला कि अरे हम दूसरे कंट्री से आए हैं, हमको थोड़ा सा ट्रेड करने दो, तो औरंगजेब बोला हाँ ठीक है कर लो, ऐसे भी क्या बिगाड़ लोगे. 1600 की बात हो रही है. उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ, उसके लगभग समझ लो लगभग 200 इयर्स बाद हुआ है बैटल ऑफ प्लासी, जहां से इन लोगों ने एक्चुअली पावर कैप्चर करना शुरू करी.
उसके पहले लगभग 100 साल तो ये लोग आराम से छोटा मोटा ट्रेड करते रहे, धीरे धीरे अपनी पावर बढ़ाई है इन्होंने। औरंगजेब के रहते तो इनका बस नहीं था कि कुछ कर पाए। अभी वो कहानी पर हम आएंगे इसके बाद कि कैसे इन लोगों ने पावर स्टैब्लिश करी। बैटल ऑफ प्लासी हुई, बैटल ऑफ बक्सर हुआ। और कोई सवाल किसी का? चलो फिर आज की क्लास यहीं क्लोज करते हैं। आप लोग ये जितना पढ़ लिया है बेटा पढ़ के आना, थोड़ा सा आगे का भी एक्स्ट्रा पढ़ के आ जाना ताकि कुछ अच्छे अच्छे सवाल। जैन्युल आपका माइक बंद रखो बेटा। ठीक है, सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड सायरा। साईराम मैम। थैंक यू मैम, बाय मैम।